Dear students of Standard 10, once again I am in front of you with the next topic of chapter power sharing. In last video, I just explained you about the Belgium model or Belgian model, right? How the leaders of Belgium just take few steps as the diversity on the basis of language was just maintained there, right? So whatever just you study and you just saw the situation of Belgium and Sri Lanka, what you conclude, what you evaluate, you just find that, right? You just find that power can be accommodated if it is shared among different layer of government. If power be centralized within one hand, then it may be possible the against voice be arise from different other community, or those community they will not be made participant in the power. So it is necessary for any government or any nation that power should be divided in such a way that every community will enjoy that rights, right? So dear students, on the basis of the study of Belgium and Sri Lanka, you can evaluate yourself. What is meaning of power sharing? I think now you are in this situation that you can define or explain more and more about power sharing. If you have just understand and see earlier video of this chapter, right? Dear students, now it became clear to all of us, power sharing is necessary. Power sharing is needed. Power sharing is desired of the people. For why? For this purpose, that every community be the participant of government, will enjoy the made policy by the government, right? Now we will study in today's topic why power sharing is desirable, right? We have to study many more things. We can think a lot how power sharing related to democracy, power sharing and India, right? So extent of discussion is so long, and in that proportion I don't have so much time and I don't have so much capacity of the data as can it be recorded and just uploaded on YouTube. Actually the video has to made in a limitation as easily can be recorded and easily can be uploaded. If it will be became so longer, then it is just happening that
few of the student just sing 1 or 2 minute and just skip from it. So it's also a challenge. So whatever I just want to say, couldn't do like. Generally, I just do in classes. But I will try my best for you better, right? So firstly, just understand here, and later on we will discuss a lot of things, right? So why power sharing is desirable? It is finalized now that power sharing is necessary, especially for democratical country, especially for the welfareness and fulfill the need of the every community of the people. There are two reasons of the power sharing. First reason, the prudential reason, and second, moral reasons. Prudential means जरूरत, नीड, ठीक है. प्रूडेंशियल मतलब आप हमारी जो जरूरत है किसी भी कंट्री में, जो पीपल्स है उनकी जो जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए. तो कहने का मतलब जो कंट्री की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है. किन किन पॉइंट पे, इसको क्लियरली देखिए. Actually, power sharing reduces the chances of conflicts between various social groups. किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी होती ही है, किसी भी कंट्री का लेंगे, जहां पर बिग पॉपुलेशन है तो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो, क्लैन के बेसिस पे हो, ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे हो, लेकिन डिफरेंसेस तो है. अगर ये डिफरेंसेज है, क्योंकि किसी भी नेशन का सोशल डिवीजन और सोशल डिफरेंसेस वो क्या है, नेचर, और ये नेचर होगा ही. और जब नेचर होगा तो उस नेचर की डाइवर्सिटीज को मेंटेन करने के लिए पावर शेयरिंग की जरूरत है, क्योंकि पावर शेयरिंग के कारण से कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि दोनों ग्रुप गवर्नमेंट के हिस्सा है. अगर एक डोमिनेंट होता है तो दूसरे भी डोमिनेंट हो सकता है. इसलिए पावर शेयरिंग डिफरेंट कम्युनिटी के बीच के डिफरेंसेज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, कम करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर पावर शेयरिंग हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेज क्या होगी, कम होगी. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पावर शेयरिंग है, लेकिन पावर शेयरिंग होने के बावजूद क्या यहाँ डिफरेंसेज नहीं होती, यहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में राइट्स नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में नहीं होता, होता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, कम किया गया है. दोनों को ऐसा नहीं है कि अगर राइज होता है तो उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. पावर शेयरिंग का ये बेनिफिट है. तो पहला रीजन क्या है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, तो पावर शेयरिंग की जरूरत इसलिए है कि पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज को रिड्यूस करता है. ठीक है. दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण क्या हो सकता है, हिंसा हो सकता है. जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ करके क्या होगा, वाद विवाद, क्या है, हिंसा में पहले बातों की लड़ाई, बात के बाद लातों की लड़ाई, और लातों की लड़ाई के बाद क्या, पुलिस का पहरा, और पुलिस के पहरा के बाद क्या है, जनता अगर मतलब बहुत आक्रोशित हो गई तो सरकार को चैलेंज, क्या, जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू सरकार के खिलाफ में. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू, स्ट्राइक शुरू, सरकार क्या मतलब इनस्टेबिलिटी की कंडीशन में आ सकता है. तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर दो कम्युनिटी के बीच में होता है, दो ग्रुप के बीच में होता है, तो वो बढ़ करके वायलेंस हो सकता है, और वायलेंस होने के कारण इनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स हो सकती है. और इनस्टेबिलिटी ऑफ अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो ये क्या हो जाएगा, कंट्री में सिविल वार और कंट्री की डिवीजन की कंडीशंस पे आ सकती है. तो ये सारे कंडीशंस को रिड्यूस करने में पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थर्ड, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पावर शेयरिंग ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं. गवर्नमेंट में लोगों का ट्रस्ट, गवर्नमेंट में कम्युनिटी के ट्रस्ट को हम मेंटेन रख सकते हैं. पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम. पावर शेयरिंग के कारण से मतलब पॉजिटिव आउटकम आने की चांसेस होती है. पावर शेयरिंग के कारण पीपल्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एक्सक्लूसिवली, मीन्स टू ग्रो इन ईच एंड एवरी सेक्टर.
सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनी टाइप ऑफ की डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं, तो पीपल सर्वांगीण विकास में के लिए ये एक बेटर प्लेटफॉर्म हो सकता है, बेटर मीडियम हो सकता है, जिस मीडियम से पीपल्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया क्यों जरूरत है, प्रूडेंशियल रीजन। इन सारे नीड के कारण ही पावर शेयरिंग को डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में इंप्लीमेंट किया जाता है। सेकंड है मोरल रीजंस। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का आत्मा है, डेमोक्रेसी को अगर फुलफिल करना है, तो डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए आपको पावर शेयरिंग को अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसी डेमोक्रेसी को तो अप्लाई कर लिया श्रीलंका, लेकिन पावर शेयरिंग को पावर शेयर नहीं कर पाया, जिसके कारण वहां पर ऐसी कंडीशंस आई। पावर शेयरिंग प्रैक्टिकल रूप में इंडिया में अगर देखा जाए तो लागू तो है क्या, लेकिन सारे कम्युनिटीज को मानने के लिए तैयार है नहीं है। अभी तक उतनी अवेयरनेस नहीं आ पाई, इस कारण से अभी तक हम आइडियल कंडीशंस, डेमोक्रेसी के आइडियल कंडीशंस पे नहीं पहुंच पाए हैं। राइट, पीपल्स हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। कहता है ये पावर शेयरिंग के माध्यम से लोगों से कंसल्ट किया जाता है, मतलब लोगों से पूछ पाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, लोगों को पार्ट बना करके, गवर्नमेंट का हिस्सा बना करके उनको ये राइट देते हैं कि वो अपने राइट को, अपने डिजायर को रख पाए कि किस तरह का शासन वो चाहते हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था के वो हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग emphasize the act of power sharing as valuable। और ये मोरल रीजंस इस बात को ये करता है, पावर शेयरिंग को इस बात पर इम्फेसाइज करता है कि पावर शेयरिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, पावर शेयरिंग काफी वैल्यूएबल है। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग लोगों का इच्छा क्यों है, डिजायर क्यों है, तो लोगों की डिजायर पावर शेयरिंग क्यों है, ये समझ में आपको आ गया। ठीक है, कि ड्यू टू मोरल रीजंस एंड ड्यू टू प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल whenever and wherever there is democratical ruling system. So dear students, on the basis of whatever you just studied in last 3 videos, right, you have to make notes clearly, right, and we will come again with one more topic of this chapter. I think the chapter is just going to be much more interesting, and now you are just taking interest. Thank you, have a nice day, and just we will meet again in next video.